इस एवेल्यूएशन रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी हम सभी यूनिट्स के साथ शेयर भी करने जा रहे हैं सर। और सर इससे पहले कि निमिषा पांडे जी इसके बारे में बताना शुरू करें सर, मैं स्पेशल डीजीपी मैडम से अनुरोध करूंगा कि इस प्रेजेंटेशन के पहले अपना दो शब्द के रूप में उद्बोधन देने का प्रयास करें। Good evening, sir. Respected DG sir, can you hear me? Yeah, please. Respected DG sir and all the officers present at PSQ and also the field. We welcome you to this report that we are presenting today. As we all know, trainings go on throughout the year and many officers also attend trainings, but we need to understand how important training is to upgrade our own skills and our knowledge. So we find mostly that whenever we organize a training program with in which a lot of effort and initiative goes into through the branch, but we find that at the district level, the selection of candidates or selection of participants is very poor, and we also find that the same person is sent for 2-3 trainings again and again. So there is a need to actually evaluate our training programs. Like after the pandemic, we have moved on to the online portals, and the quality of the training has improved tremendously because we have resource personnel from all over the world, and in many of our programs police officers from outside the state have also joined in because the quality of the programs was so good. So we need to, I think the district SPs need to understand what is going on, going into have when we make a module or have a training program schedule. What all is going into it, what are the inputs that are going, and to select the appropriate participants who can benefit from the training program. So that is why we felt the need that we need to evaluate what kind of training programs we are doing and how we should go forward, and what the participation or what the involvement of the district units has to be. So Nimisha has done a very, she's an international trainer, she's done a very good job in going into the details of the training. So I think it will benefit all of us if we try to follow and try to because this year we have made a very comprehensive training program and included many new topics which are very useful for police officers in their personal life and also in the professional life. So we in the training branch would like to we would like to get the involvement of everyone concerned so that the programs will be of good quality and also beneficial to everyone. So thank you so much. Thank you, sir. बहुत धन्यवाद सर। अब मैं पुलिस अधीक्षक डीडीएस पचमढ़ी निमिषा पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी इवैल्यूएशन रिपोर्ट से हम सभी को परिचित करें। निमिषा सर नमस्कार, आदरणीय डीजी सर एवं समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण। वर्ष 2020 में ट्रेनिंग ब्रांच ने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगातार ऑर्गेनाइज किए थे, सबका इवैल्यूएशन सर हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से किया है। साल की शुरुआत में ट्रेनिंग नीड एनालिसिस किया था, इनफैक्ट उससे पहले ही कर लिया गया था दिसंबर में, और कुछ इश्यूज उसमें आइडेंटिफाई किए थे। उसमें सबसे मुख्य जो था वो ये था कि सेवा के दौरान प्रशिक्षण, जो इन सर्विस कोर्सेज हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन हमारे जो ड्यूटीज़ वगैरह और उसमें बहुत ज़्यादा जो व्यस्तता होती है हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की, इस वजह से हम कर नहीं पाते हैं। तो इस वर्ष उसको प्राथमिकता दी गई थी 2020 में, और ये तय किया गया था कि इसमें वर्टिकल इंटरेक्शन को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हम एक टीम के रूप में काम करते हैं और उसमें अलग अलग रैंक के लोग जब शामिल होते हैं तो एक दूसरे की रैंक से संबंधित जो भी चुनौतियाँ हैं उनको समझकर और उसके माध्यम से सीखने की कोशिश की जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था सर। इसमें जो शुरुआत में जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज की गई थी उसमें विषयों का चयन किया गया था। ऐसे बहुत सारे नए टॉपिक्स जिन पे जनरली हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, या बहुत सारे पुलिस के जो नए काम हो गए हैं उनको भी शामिल करते हुए इसमें सर इन सारे विषयों को इसमें दिया गया। एक जो बहुत खास बात थी हमारे पास वो ये थी कि हमारी पीटीएसएस जो थे वो पिछले साल उनमें कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं थे, जो बैचेस चल रहे थे वो लगभग फरवरी में सारे बैचेस खत्म हो गए और पूरे साल के लिए ऑलमोस्ट हमारे ट्रेनिंग पीटीएसएस जो थे वो फ्री थे। रिक्रूटमेंट के नहीं होने से कोई नया बुनियादी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी नहीं थी, तो ये माना गया कि इनका हम बेहतर
उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक खास बात थी सर इसमें। और जो हमारी ट्रेनिंग ब्रांच है उसमें लगातार इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करने का एक प्लान तरह से तैयार किया था। इसमें जो हमारी कार्य योजना थी वो ये थी कि साल की शुरुआत में जो कैलेंडर बना था वो काफ़ी विस्तृत बना था, काफ़ी एग्जॉस्टिव था। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमने चूज किए थे। और एक सबसे बड़ी बात ये रही कि सर हमारे जो विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण जो है एडीजी सर जो अलग अलग ब्रांचेस में है और पर्टिकुलरली बहुत सारी जगह आपने जो काम किए हैं उनसे संबंधित सब्जेक्ट्स को हमने उनको देखकर सर उनसे स्टडी मटेरियल जो तैयार करवाया। तो एक स्टैंडर्डाइज मटेरियल तैयार हो जाए जिससे कि सभी फीचर्स में एक समान रूप से ये ट्रेनिंग दी जा सके। तो इसमें सर जैसे डायल 100 CCTNS महिला अपराध से संबंधित मुद्दे और इस प्रकार के सारे विषयों को शामिल करके इसका हमने ट्रेनिंग मटेरियल पहले इकट्ठा करने की कोशिश की है। इसमें जो चौथा पॉइंट है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिलों के नोडल अधिकारियों का वेबिनार कोऑर्डिनेटर ग्रुप तैयार किया गया। सर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रेनिंग टीम थी और PTSS में उन्होंने सो मोटो अपने मन से एक बढ़िया ग्रुप बना लिया जिससे कि कम्युनिकेशन फास्ट हो गया। सर नॉमिनेशंस वगैरह में जो उनको प्रॉब्लम आती है उसको वो लोग देन एंड देयर सॉर्ट आउट करने लगे थे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। इसमें हमने नामांकन और फीडबैक जो है वो गूगल फॉर्म के माध्यम से लिया। तो इसमें सर हमारे पास एक सारा रिकॉर्ड जमा हो गया कि हमारे कितने लोग ट्रेनिंग्स में रजिस्टर हुए और उनकी क्या क्या फीडबैक थे, किस किस तरह के रिस्पॉन्सेज हमको मिले। शुरुआत में सर ये तय किया गया कि जो PTS में जो हमारे स्टाफ पदस्थ है सभी लोग ट्रेनिंग में बहुत एक तरह से एक्सपर्ट नहीं होते हैं। वो कोचिंग के जरिए वहाँ आते हैं तो उनका ओरिएंटेशन कभी कभी नहीं होता है इस तरह का। तो सर हमने TOT करवाने का, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम करवाने का पहले प्लान किया था इसमें। और इसमें उनको जो है लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है ऑडियो विजुअल एड्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज को कैसे यूज किया जाए और ट्रेनिंग को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इसके लिए TOT करने का सर यहाँ प्लान किया गया। और 2 चरणों में प्लान किया गया था कि हम लगभग 30-35 लोगों को एक एक चरण में इसमें ट्रेन करेंगे। सर हमारा जो सर इसमें फोकस था वो ये था कि ट्रेनिंग सेशंस को कैसे डिजाइन किया जाए, उसमें प्लानिंग और डिलीवरी दोनों के ऊपर फोकस करके सर इसमें काम किया गया। हमारे जो ट्रेनर्स वहाँ पदस्थ हैं PTSS में उनसे जब शुरुआत में बात की गई कि आप लोग लगभग 10-15 साल है इससे भी ज़्यादा से वहाँ पदस्थ हैं तो आप क्या चीज़ ऐसी है जो आपको व्यावहारिक रूप से दिक्कत देती है। तो उनका सभी का ये कहना था कि इंटरेस्ट नहीं जनरेट हो पाता पार्टिसिपेंट्स का, तो हम कैसे इसको बहुत रुचिकर बनाएं और पार्टिसिपेटरी लर्निंग कैसे हो। तो सर हमारा फोकस यही चीज़ों के साथ हमने एडल्ट लर्निंग की कॉन्सेप्ट पहले उनको बताने की कोशिश की कि किस तरह से एक वयस्क को हम सिखा सकते हैं जिनको अनुभव है, खासतौर पर इन सर्विस कोर्सेज में जहाँ की लोग एक एक्सपीरियंस लेके यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं। तो उनको बेसिक के अलावा हमें किन व्यावहारिक चीज़ों को सिखाने की जरूरत है। लर्निंग स्टाइल, ट्रेनिंग मेथड्स, जिसमें से केस स्टडीज, सिनेरियो बेस्ड एक्सरसाइजेज से, सिमुलेशन एक्सरसाइजेज से और भी कई तरह की ट्रेनिंग मेथड्स को इस्तेमाल करके हम कैसे उसको पार्टिसिपेटरी बना सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरह का होना चाहिए और ग्रेजुअल इवैल्यूएशन और फीडबैक किस तरह का लिया जाए समय समय पर, ये चीज़ें से हमने फोकस करके ये TOT प्लान किए सर। इसमें पहला TOT हमने करवाया था 5 दिन का सर, ये भौरी में हम करवा पाए फिजिकली। इसमें 35 प्रशिक्षक थे जो अलग अलग PTS और दोनों अकेडमी से सर आते हैं, हम शामिल हुए थे। हमने इनको एक बार सर TOT की सारी टेक्निक्स में ट्रेन करने के बाद जो हमारा कैलेंडर हमने डिजाइन किया था उस कैलेंडर पे हमने इनको जिम्मेदारी दी कि हर PTS जो है वो अपने संबंधित जोन के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। सब्जेक्ट एक ही रहता था, अलग अलग PTS उसको कंडक्ट करते थे, लेकिन हमारा कंटेंट एक थे और वो अपने अपने जोन के पार्टिसिपेंट्स को इसमें लीड करते थे। तो जो पहला चरण था हमारा TOT का इसमें कंप्लीट हो गया। दूसरा हमें फिर करना था, लेकिन उसी बीच में ये सारी चीज़ें हो गई, कोविड के कारण सब परिस्थितियाँ काफ़ी चेंज हो गई। हम मात्र एक ट्रेनिंग प्रोग्राम फिंगरप्रिंट का सभी PTSS के माध्यम से करा पाए जो कि फिजिकली हुआ। उसके बाद हमको लॉकडाउन वाले फेज में अपनी सारी ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी को सब चेंज करना पड़ा। सबसे शुरू में हमने YouTube चैनल लॉन्च किया ट्रेनिंग ब्रांच का, जिसमें अभी फिलहाल लगभग 8000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ये जरूर थोड़ा सा कमजोर पक्ष है कि इसमें हमारे बहुत सारे लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लेकिन हमने सर इसमें छोटे छोटे ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स बना के जो सबसे ज़्यादा शुरुआत में बहुत बेसिक चीज़ों से, ताकि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो और वो बार बार इस चैनल पर जाकर सर्च करें कि आखिर
नया क्या हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल छोटा छोटा इंग्लिश लर्निंग से लेके पुलिस की कई सारी किस्से कहानियाँ और उनसे शुरुआत करके हमने फिर इसमें गंभीर विषयों को भी शामिल करते गए, वेलफेयर से संबंधित, अकाउंट से संबंधित और उनके रेगुलर वर्किंग से संबंधित जो छोटे छोटे विषय होते थे वहाँ से लेके साइबर तक के हमने सारे विषयों को इसमें शामिल करना शुरू किया और इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स के माध्यम से अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली इसमें जारी रखा। तो इसमें लिंक है हमारा चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल। इसके साथ में सर हमने ये प्लान किया मई में लगभग कि हमको अपना जो कैलेंडर है उसको किसी न किसी रूप में ट्रेनिंग को आगे बढ़ाना है, वो कहीं हैम्पर ना हो। तो इसके लिए हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग की परिस्थितियाँ उस तरह से तैयार की कि हमारे सारे ट्रेनिंग सेंटर्स को हमने इंस्ट्रक्ट किया कि जो हमारे लोग ऑलरेडी टीओटी ट्रेंड है वो भी इस काम को हाथ में लेंगे। सारे पीटीएसएस में हमने एक छोटा छोटा जो भी वहाँ अवेलेबल था रिसोर्सेज उनसे हमने ई स्टूडियो बनाने की सर व्यवस्था की, कंप्यूटर, माइक और ये सब सारी चीज़ों के साथ उनको टेक्निकल असिस्टेंस सर हमने दिया, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म्स के बारे में गाइड करना शुरू किया उसमें और उसके सब्सक्रिप्शन भी दिलाए। सारे पीटीएसएस के पास पेड सब्सक्रिप्शन हो गए सर। और इसी में हमने जो सबसे पहला किया था वो टीओटी का सेकेंड जो हमारा पेज था वो हमने ऑनलाइन पद्धति से शुरू करके लगभग 42 लोगों को सर इसमें प्रशिक्षित किया। इसमें उनको वो सारी चीज़ें भी बताई गई कि हम हर प्रशिक्षण को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, उसको पार्टिसिपेटरी भी बना सकते हैं। इसमें शुरुआत के समय में हम लोग पेड सब्सक्रिप्शन यूज़ नहीं कर रहे थे तो थोड़ी सी दिक्कतें थी, लेकिन बाद में उसको सॉर्ट आउट करके हमने सभी को ये करवा दिया। तो हमारे से लगातार जो हमारा कैलेंडर था उसको हमने और इसके बाद जो हमने ये किया सर कि हमने उनको जोन की जिम्मेदारी ना देती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मोड में पॉसिबल है कि अगर एक पीटीएस उसको कंडक्ट करे तो वो पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर सकता है। तो हमने उस तरीके से सर इसको टेकअप किया और फिर हमारा जो कैलेंडर वाला जो हमारा शेड्यूल था वो फिर से अपने उसी रूप में आना शुरू हो गया। कुल सर हमारे पूरे वर्ष 2020 की साल की उपलब्धि जो ये रही कि हमारे टोटल 88 कोर्सेज सर हमने चलाए पीटीएसएस के माध्यम से खासतौर पर, और इसमें 43 विषयों को शामिल किया गया जिनमें बार बार हमने प्रशिक्षण किए। पीटीएसएस के अपने जो कोर्सेज थे उसमें हमारे 9,289 लोग सर इसमें ट्रेन हुए और लगभग 150 से ज़्यादा हमने गेस्ट स्पीकर्स को और विषय विशेषज्ञों को सर इसमें बुलाए। जो हमारा कैलेंडर था उसमें मेन फोकस सर इन टॉपिक के ऊपर था। अवसर प्रबंधन, सूचना का अधिकार था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल किया जाए, डिजिटल एविडेंस को भी सर हमने इसमें कवर किया था, पॉक्सो एक्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड को कवर किया सर, एनडीपीएस एक्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सीसीटीएनएस, सोशल लेजिस्लेशन, ई गवर्नेंस, मेंटल हेल्थ, इमोशनल इंटेलिजेंस, सॉफ्ट स्किल्स, इंटरपोल लुकआउट नोटिस, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन और साइबर क्राइम। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स सर ऐसे थे जो ट्रेडिशनली पहले हम लोग नहीं करा पाते थे। उसके लिए हमको सर इसमें बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन ऑनलाइन होने के कारण उपलब्ध हो गए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर आरटीआई के हम हायर ऑफिशियल्स को सर इसमें बुला पाए। पिछले साल कुछ हमने नए प्रयोग भी किए सर इन रेगुलर ट्रेनिंग्स के अलावा। इसमें 16 भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का इंटरैक्टिव सत्र वो हाल फिलहाल ही में हमारा खत्म हुआ है सर। इसमें हमने डीएसपीज के और सब इंस्पेक्टर्स के जो बेसिक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का उनका एक पार्ट होता था सर, वो भी हैम्पर हो गया था हमारा कोविड के कारण, तो उसको हमने ऑनलाइन तरीके से वो सारे प्रेजेंटेशंस भी सर इसमें करवाए। इसके साथ सर हम लोगों ने मिनिस्ट्रियल स्टाफ के जो 250 लगभग कर्मचारी थे जिनका बेसिक ट्रेनिंग नहीं हुआ था, वो बार बार पोस्टपोन होता जा रहा था क्योंकि कोविड के कारण हम करवा नहीं पा रहे थे, तो हमने उसको भी सर 3 महीने का जो इनका बेसिक कोर्स है उसको हमने फिर ऑनलाइन पिकअप किया और ऑनलाइन भी करवा के सर उनका हमने बार बार हर 15 दिन का उनको क्वेश्चन पेपर जो भी उनका 15 दिन का कोर्स होता था वो कंप्लीट होने के बाद गूगल फॉर्म्स के माध्यम से उनके क्वेश्चन पेपर बना के और फिर उनको सर हमने वो पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया। इसी तरह से हेड कांस्टेबल्स और एएसआई का इंडक्शन कोर्स भी सर काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा था, तो ये 1 महीने का कोर्स भी हमने उनका ऑनलाइन कराया। उसमें उनको वीकली टेस्ट करा के और लास्ट में जो है उनका आउटडोर वाला उनके जो संबंधित जिले हैं वहाँ आउटडोर उनका एग्जाम करा के सर ये सारे कोर्सेज कंडक्ट करवाए। इसके बाद सर इसमें मूल्यांकन का हमने जब साल के पूरे ये सारे प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिए तो हमने अपने काम का असेसमेंट करने के लिए इसमें फीडबैक लेना शुरू किया और इसमें अलग अलग ग्रुप्स बनाए सर। इसमें 100 लोगों का हमने सैंपल लिया, उसमें हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे सभी जिलों के
उसमें से 100 लोगों को सर हमने इसमें चुना। 100 उन लोगों को चुना, वो अधिकारियों को जो उनको सुपरवाइज कर रहे थे, जिनको हमने ट्रेन किया। जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स थे, जो डिस्ट्रिक्ट्स के भी लोग थे, उनको हमने सर इसमें चुना। और हमारे जो टीओटी ट्रेन जो ट्रेनर्स थे पीटीएसएस के, उन सभी को सर हमने लेके और उनके ऑनलाइन फॉर्म जनरेट किए फीडबैक लेने के सर। और उसके बाद उनका फीडबैक लेके इस तरह से रिस्पॉन्सेज हमने कलेक्ट किए सर। इसमें कई तरह के क्वेश्चन इसमें हमने डाले थे कि क्या कोई नई स्किल उन्होंने सीखी, उस स्किल का कैसे वो अपने प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका लॉ का नॉलेज में कोई बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई, उन्होंने अपना जो भी चीज़ें सीखी है उसको अपने कोलीग्स के साथ शेयर किया या नहीं किया। इस तरह के सर क्वेश्चन से हमें ये सारे रिस्पॉन्सेज इकट्ठे किए। फिर इसमें कुछ हमने स्लाइड्स डाली है, बाकी काफ़ी सारे क्वेश्चन सर हैं और उस बुकलेट में हमने इसको शामिल किया है। सर फाइनल आउटकम जो हमारी ट्रेनिंग्स का रहा, जो मैंने आपको बताया कि सर पीटीएसएस के माध्यम से 9,000 से ज़्यादा लोगों को हमने ट्रेन किया था। लेकिन उसके साथ ही साथ सर हमारी जो दोनों अकेडमी है, पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस अकेडमी मौरी से भी लगातार वेबिनार्स चलते रहे। उसमें वो सारे टॉपिक्स उन्होंने भी कवर किए सर। और उसमें सभी रैंक के, खासतौर पर एसपीज एडिशनल एसपीज के लिए उन्होंने बहुत अधिक वेबिनार्स किए सर। और टोटल हमारा जो आउटकम है वो 10,000 से ज़्यादा हमारे पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी इसमें प्रशिक्षित हुए। सबसे खास बात ये रही सर, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे थे जो 0 बजट में भी हमारे कंप्लीट हुए। उसमें कोई फाइनेंशियल किसी भी तरह का बर्डन नहीं आया। जो हमने सर एक असेस किया कि जो कॉस्ट थी हमारी, जो अकेडमी इस तरह के इन सर्विस कोर्सेज कराती थी, जब पर्सनली बुला के, तो उसका प्रति प्रशिक्षु जो व्यय था वो 1,800 रुपये लगभग होता था। जो हमने अभी ओवरऑल कॉस्ट निकाल के और उसको सर डिवाइड किया सभी पीटीएसएस से, तो लगभग 100 रुपये के लगभग हमारा पर पर्सन, जो भी वहाँ टेक्निकल असिस्टेंट और इसके जो चीज़ें लगी मानदेय वगैरह को मिला के सर। इसके साथ साथ सर हमने अपने सारे पीटीएसएस और हमारी दोनों अकेडमीज को भरपूर इस्तेमाल किया सर। वहाँ जो स्टाफ पदस्थ था, मैक्सिमम लोगों को हमने टीओटी करवाया, तो उन सब का इस्तेमाल सर इसमें किया। जो टेक्निकली साउंड थे उन लोगों को उस तरीके से इस्तेमाल किया, जिनकी सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज थी उनको सर हमने स्पीकर उसमें इस्तेमाल किया। तो हमारे पीटीएसएस का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन था सर वो हम लोग कर पाए। हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि सर हमने पीटीएसएस को कुछ फ्री हैंड दे रखा था कि वो जिन भी सब्जेक्ट्स पे अपना कोर्स करवाना चाहते हैं उस पर वो जहाँ से भी रिसोर्स पर्सन ला सकते हैं। तो सभी लोगों ने सर इसमें अपने अपने स्किल्स का इस्तेमाल किया, अपने अपने नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतरीन लोगों को सर इससे जोड़ने की कोशिश की। और ऑनलाइन मोड में होने के कारण उसमें वो दिक्कतें नहीं आई, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा नेटवर्क तैयार हो गया। इस बुकलेट में भी सर हमने पीछे वो सारी लिस्ट डाली है जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की, जिससे कि आगे भी कभी कोर्सेज कराने हैं तो उसमें रेफर किया जा सकता है कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए उन्हें स्पीकर चाहिए तो यहाँ से सर उनकी जानकारी मिल जाएगी। हमारे बहुत सारे वेबिनार्स में सर अदर स्टेट के भी लोग शामिल हुए। कुछ चीज़ें सर जो हमारा ये पूरा इवैल्यूएशन और हमारा पूरा जो साल भर का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस रहा, उसमें हम लोगों ने जो नोटिस किया उसमें ये पाया कि ट्रेनिंग जो है वो हाइब्रिड किस्म की होनी चाहिए। इसमें ऑनलाइन और पर्सनली जो फिजिकली जो होते हैं वो दोनों तरह के कोर्सेज हों। उससे हम अपनी ट्रेनिंग कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं सर, और बहुत ज़्यादा लोगों तक के हम पहुँच सकते हैं। हमारे पुलिस का लगभग हर पुलिसकर्मी अलग अलग स्किल्स में ट्रेन हो सकता है सर। इंडक्शन कोर्स में सर खास तौर पर हमने ये चीज़ महसूस की कि अगर हम उसको ऑनलाइन मोड पे ले जाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली एक तरह का उनका प्रमोशन तो हो जाता है, लेकिन उनको एक तरह से क्वालिफाइंग एक कोर्स हम करवाते हैं, तो वो नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, ना कि पास होने का कंपल्शन सर उसमें हो। उससे वहाँ जो पीटीएसएस में जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार करप्शन की शिकायतें भी मिलती है पास करने के नाम पे, और उनका हरासमेंट भी काफ़ी होता है, तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन हमारे जो इंडक्शन कोर्सेज और जो इन सर्विस कोर्सेज हमने करवाए सर, उसमें हम ऑनलाइन मोड से उनके एग्ज़ाम लेते थे, तो उनको नंबर ऑफ अटेम्प्ट हम अनलिमिटेड देते थे, क्योंकि बार बार वो एग्ज़ाम अगर उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो बार बार वो बुक को रेफर करते बार बार पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नॉलेज में बढ़ोतरी होती है। तो पास होने का कंपल्शन उसमें नहीं रखा था सर हमने, हालांकि पासिंग मार्क्स 80% रखा था, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट उसमें अनलिमिटेड था। तो इस तरह से उनको खुद भी अपने अंदर एक प्राउड फीलिंग हुई कि उन्होंने बार बार पढ़ के उस कोर्स को अच्छे मार्क्स से पास किया। ये सब सारी चीज़ें सर हमने यहाँ महसूस की। अनियमितताओं पर नियंत्रण और बहुत हद तक लोगों की उपस्थिति। कई बार हमने ये भी नोटिस किया सर कि हमारी एक लिंक पे हम बार बार कोर्सेज करते हैं, पीटीएस एक लिंक जनरेट करता है,
बहुत बार कई लोग बिना किसी इनविटेशन के भी उसको लॉग इन करके देखना चाहते हैं कि यहाँ क्या कोर्स चल रहा है। कई बार हमने ऐसे जिलों से लोगों को जिनको हमने नहीं बुलाया तो उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि अब क्या किस तरह का कोर्स चल रहा था। तो इस तरह से सर हमारे छत्तीसगढ़, केरला से, गुजरात से, राजस्थान से, यूपी से, अलग अलग स्टेट से सर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने सर अपनी मर्जी से हमसे लिंक मांग के और इसमें शामिल होकर सर हम लोगों ने इन कोर्सेज को अटेंड किया। अदर स्टेट्स ने भी सर अप्रिशिएट किया और BPRLD ने भी सर इन चीज़ों को हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य के जो ट्रेनिंग इनिशिएटिव थे वो अप्रिशिएट किया। तो ये हमारे सर आज की रिपोर्ट है। बहुत धन्यवाद निवेशा इस विस्तृत रिपोर्ट के लिए। और अब मैं अंत में आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द अपना उद्बोधन देने का प्रयास करें। थैंक यू। ट्रेनिंग डिवीज़न को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खासतौर पे जो पिछला साल कोविड पेंडेमिक का गया है और उसमें प्रशिक्षण को जारी रखना एक बहुत ही कठिन टास्क था, जो कि इनिशियली जब भी अचानक लॉकडाउन से शुरू हुई थी बात, तो सारे कोर्सेज निरस्त ही हो गए थे। उनको कैसे चालू किया जाए और कैसे अच्छी तरह से पूरा किया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसा कि रिपोर्ट में हमने देखा, इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाके इसकी रीच बहुत बढ़ाई गई, इसकी क्वालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट लाया गया, पार्टिसिपेशन का लेवल भी जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ और एक जिसे कहते हैं कि जोश जो रहता है एक फिजिकल ट्रेनिंग के समय जो ग्रुप में दिखता है, वैसा ही जोश डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी दिखा। आई थिंक ये आप लोगों की सबसे बड़ी सफलता है। और जो फैकल्टी का लेवल इम्प्रूव हुआ है वो एक बहुत कठिन टास्क होता है। अदरवाइज फिजिकल ट्रेनिंग में ये बहुत मुश्किल होता है किसी को फिजिकली बुला के फिर लेक्चर अरेंज करना। ये एक ऐसा जरिया मिला जो भले ही मजबूरी के साथ शुरू हुआ था, लेकिन इसके अब फायदे साफ नजर आए हैं। रिपोर्ट इस बात का जीता जाता उदाहरण है कि कितनी अच्छी क्वालिटी के आपको इंस्ट्रक्टर्स इसमें अवेलेबल हो गए। तो उससे आपका ट्रेनिंग सेशन इंटरेस्टिंग हो गए और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो नॉलेज में इजाफा होना चाहिए वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ और सभी लाभान्वित हुए। तो इसको जारी रखना ही एक हमारे लिए आगे का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो रहेगा। आपने प्रोजेक्ट किया है कि आप हाइब्रिड वे में चलाएंगे कोर्सेज, विच इज़ नेचुरल, क्योंकि आप फिजिकल कोर्सेज फिर शुरू हो सकते हैं। फिजिकल कोर्सेज का एक अपना महत्व है और उसका एक अपना फ़ायदा होता है। तो कुछ एसेंशियल कोर्सेज फिजिकल चलाए जाएं और कुछ कोर्सेज जिसमें हम जल्दी ही ज़्यादा लोगों तक कुछ चीज़ों को ट्रेनिंग पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाए, या जहां ट्रेनर्स उस तरह के हैं जो आ नहीं सकते हैं वहां पे इसको यूज़ किया जाए। ऐसा ही प्लान अब 2021 के लिए रहेगा। आई एम श्योर आप लोग इसको पुनः बहुत अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। वंस अगेन आपको ट्रेनिंग डिवीज़न को स्पेशल डीजी ट्रेनिंग, एडिशनल डीजी ट्रेनिंग, AIG ट्रेनिंग, ये सब लोग जो मेहनत से किए हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई एंड थैंक यू सो मच।